Hello students, welcome to the Vakar Education Hub. I am Neha Miglani. Today I am just going to cover the topic of introduction and concept of research methodologies or research aptitude part 2. In my previous video of research, I have discussed the brief introduction meaning of research. Now we are going to cover the meaning of research in another way also in my part 2 video. So let's start our video. Aptitude is an important concept in the paper 1 UGC NET syllabus. When you go through the syllabus, you will see the research aptitude is come under the unit 2nd of the paper 1 of UGC syllabus, and it is very important topic for the examination purpose for the UGC and also for the examination purpose for the any other PhD entrance exam also. So let's start our topic. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Vakar Education Hub and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from the Vakar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. In my previous video, I have already said that what is research. Research means the search for knowledge. It means you have to get a new knowledge from the existing knowledge. When you have a answer about the 6 things, that what, where, how, why, who, when you get all the answer from these questions, then it is called a research. So we will understand the research with the help of the another meanings and with the help of the some definition also. So what is research? Investigations using scientific procedure by searching again and again to find out the truth. एक इन्वेस्टिगेशन होती है, एक सर्चिंग होती है एक साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू. जब हम एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देन इट इज़ जब भी हम बार बार सर्च करते जा रहे ताकि हमें ट्रुथ का पता चल क्यों नहीं जाता है. ठीक है, तब तक हम उसको रिसर्च करते रहे हैं तो उसको हम रिसर्च कहेंगे. सो रिसर्च इज़ ए कॉन्टीन्यूअस सर्च फॉर द ट्रुथ. ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, कॉन्टीन्यू वे से हम सर्च करते रहते हैं ताकि हमें ट्रुथ का पता चल जाए, बट विद द हेल्प ऑफ ओनली साइंटिफिक मैथड. सो इट इज़ द परस्यूट ऑफ द ट्रुथ विद द हेल्प ऑफ द स्टडी. इसको हम तभी ही कर सकते हैं जब रिसर्च हम तभी ही कर सकते हैं जब हमें इसकी स्टडी की नॉलेज हो कि रिसर्च कैसे की जाए, इन्वेस्टिगेशन कैसे हो, ऑब्जर्वेशन कैसे की जाए, कंपैरिजन कैसे किया जाए, एक्सपेरिमेंटेशन कैसे हो. ठीक है, तो रिसर्च तभी कंटिन्यू होती है व्हेन वी हैव ए ट्रुथ विद द हेल्प ऑफ द, हम इस ट्रुथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, विद द हेल्प ऑफ द स्टडी. ब्रीफ स्टडी जब हम करें या फिर हम इन्वेस्टिगेट करें या फिर कुछ ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, या फिर कंपैरिजन करें कि पुराने डाटा का नए डाटा के साथ कंपैरिजन करें, या फिर एक्सपेरिमेंटेशन कुछ करें, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके जब हम ट्रुथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम रिसर्च कहते हैं. So now come to the definition of the research. Definition is given by WHO, World Health Organization in 1992. ठीक है, रिसर्च क्या है? रिसर्च इज़ ए क्वेस्ट फॉर नॉलेज. ये एक तरीके का क्वेश्चन होता है नॉलेज कुछ जानने के लिए, थ्रू डिलिगेंट सर्च और इन्वेस्टिगेशन,
थ्रू कुछ डिलीगेंट मतलब कुछ ब्रीफ सर्च करने के बाद या फिर कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद या फिर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद एट द डिस्कवरी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू नॉलेज, ताकि हमें कुछ डिस्कवर कर सके या फिर कुछ नई नॉलेज के बारे में रिजल्ट फाइंड आउट कर सके। सो साइंटिफिक मेथड इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ ए प्रोसीजर एंड टेक्निक अप्लाइड इन कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन टारगेट एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज। साइंटिफिक मेथड जो भी यूज़ किए जाते हैं वो इसलिए यूज़ एक ऐसे प्रोसीजर और टेक्निक्स होती हैं ताकि हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकें या अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकें, ताकि हम ट्रुथ को नियर बाय फाइंड आउट कर सके या फिर कुछ अच्छी सी नॉलेज फाइंड आउट कर सके। सो हियर्स रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड में बी कंसीडर्ड ए कोर्स ऑफ क्रिटिकल इंक्वायरी। इसमें जब हम रिसर्च की बात करते हैं, जब हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं उसमें, तो साइंटिफिक मेथड एक जो होती है क्रिटिकल इंक्वायरी होती है कि एक इंक्वायरी को कैसे करना है, कैसे हमने फर्स्ट स्टेप लेना है और कैसे लास्ट स्टेप तक जब हमने पहुंचना है, तो उसको हम साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं। जब हम सिस्टमेटिक वे से जब हम वर्क करने की कोशिश करते हैं, सो इट इज़ अ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। ये एक डिस्कवरी की जाती है इसमें कि फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के जानने के लिए कि कितना इंक्रीज आ रहा है और अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, और अवर अंडरस्टैंडिंग की जाती है कि ह्यूमन हेल्थ और डिसीज़ कैसी हो। सो सर्च क्या होता है, जब हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू या सिस्टम के थ्रू जब हम कुछ रिसर्च फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या फिर उसका ब्रीफ स्टडी करके या एक्सपेरिमेंटेशन करके या इन्वेस्टिगेशन करके या ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है, कुछ नए न्यू नॉलेज को गैदर करने की जब हम कोशिश करते हैं तो उसको हम रिसर्च कहेंगे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चंस विच आर बीइंग अराइज्ड व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च। जब आप एक रिसर्च करते हैं तो आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट्स अवर आउट देयर, यहाँ पे है क्या, है क्या मिलेगा, व्हाट डज इट लुक लाइक, ये किस तरीके से लग रही है रिसर्च, वो चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। हाउ डज इट वर्क, एक रिसर्च जब हम करते हैं तो वो किस तरीके से वर्क करती है। हाउ वेल डज ए मैथड सॉल्व ए प्रॉब्लम, कौन कौन से ऐसे मैथड्स हैं और ये मैथड कैसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वाई डज समथिंग हैपन द वे इट हैपन्स, ये क्यों हैपन हुआ है और किस तरीके से ये हैपन हुआ है। और व्हाट वुड हैपन इफ़, और ये प्रिडिक्टिव, कुछ हम प्रिडिक्शन करके भी चलते हैं। देखो जब भी हम रिसर्च करेंगे तो सबसे पहले हमने प्री अजम्पशंस लेके चलनी है या कुछ प्रिडिक्शंस लेके चलनी है कि व्हाट वुड हैपन इफ़, क्या होगा अगर ऐसा हो तो। सो जब आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन आएंगे, या फिर मैंने आपको कल की वीडियो में भी जब बताया है कि आपके सिक्स जो आपके पर्सन्स हैं उनके क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाए। व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, how happened, why happened, whom happened and what are effects of that happens। जब आपके इन क्वेश्चंस के जब आपको आंसर सबके मिल जाते हैं तब उसको हम रिसर्च कहते हैं। सो जब भी आप रिसर्च से निकालते हो तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। और लास्ट वन थे यू हैव ए प्रीअजम्पशन, आपके कुछ ना कुछ पहले प्रीअजम्पशंस होने चाहिए और उन्हीं को ही ट्रुथ करने की आप कोशिश करोगे रिसर्च में। सो कुछ एग्जाम्पल्स हमने ली हैं, जैसे ड्राइवन बाय ए न्यू डाटा, एक्स इज़ ए न्यू टाइप ऑफ डाटा इमर्जिंग। एक एक्स है वो एक न्यू टाइप ऑफ डाटा इमर्जिंग है। हाउ इज़ एक्स डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ डाटा, ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आया है कि हाउ जो नया डाटा एक्स फॉर्म्ड डाटा है वो दूसरे प्रीवियस डाटा से किस तरीके से अलग है। सो व्हाट न्यू इशूज़ प्रॉब्लम्स आर रेज्ड बाय एक्स, क्या क्या इशूज़ आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम डाटा एक्स को यूज़ करते हैं। आर एग्जिस्टिंग मेथड सफिशेंट फॉर सॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम्स ऑन एक्स, या जितने भी सफिशेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो क्या उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस, क्या न्यू चैलेंजेस होंगे। व्हाट न्यू मेथड्स आर नीडेड, क्या न्यू मेथड्स हमें चाहिए। आर ओल्ड एवेल्यूएशन मेजर एडुकेट, या ओल्ड एवेल्यूएशन मेजर कर सकते हैं। तो मतलब जब आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन आते हैं देन इट इज़ कॉल्ड ए रिसर्च। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल को देखना एक बार, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरीके की रिसर्च होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाने की कोशिश की है कि किसको रिसर्च कहेंगे और किसको रिसर्च नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, रिसर्च आइडियाज़ क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ आइडियाज़ हमें क्वेश्चंस अगर आएंगे, हाउ इफेक्टिव
ए रिक्रूटिंग फॉर न्यू स्टाफ वाया द इंटरनेट इन कंपैरिजन विद द ट्रेडिशनल मेथड। रिसर्च आइडिया आपके माइंड में क्या है कि जॉब रिक्रूटमेंट करनी है वाया इंटरनेट। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि इज इट इफेक्टिव और नॉट, तो इसको हम रिसर्च कहेंगे जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। नेक्स्ट रिसर्च आइडिया आया है एडवर्टाइजिंग एंड शेयर प्राइसेस। हाउ डज द रनिंग ऑफ ए टीवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिजाइन टू बूस्ट द इमेज ऑफ द कंपनी इफेक्ट। जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तब हमारे माइंड में आइडिया आता है कि एडवर्टीजमेंट हम करें या प्राइसेस शेयर करके चले, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर आप टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आपके प्रोडक्ट को कितना बूस्ट मिल सकता है। नेक्स्ट आइडिया आपके माइंड में आता है द फ्यूचर ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस का क्या फ्यूचर है आगे के लिए। सो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट ट्रेड यूनियन शुड अडॉप्ट टू इंश्योर देयर फ्यूचर विएबिलिटी, कि ऐसे कैसी स्ट्रैटेजीज जो है ट्रेड यूनियंस फॉलो करेगी ताकि वो अपने जो भी फ्यूचर विएबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सके या उसको बूस्ट कर सके। ठीक है, रिसर्च तभी आती है जब आपके माइंड में कुछ आइडिया आए और आइडिया के साथ साथ जब आप एक क्वेश्चन लेके चलते हो तब आप एक रिसर्च कर पाते हो। जैसे मैंने ये आइडिया लिए हुए हैं और इसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए हैं, तब ये आइडिया जैसे आए मैंने रिक्रूटमेंट लिया। अब मैं देखूँ इंटरनेट रिक्रूटमेंट भी है, ट्रेडिशनल मेथड भी है। अब मैं फॉलो कर रही हूँ इंटरनेट रिक्रूटमेंट के बारे में सोच रही हूँ, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन भी आना चाहिए कि इज़ इट इफेक्टिव और नॉट। ठीक है, तो जब ऐसे माइंड में अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं तब वो उसको हम रिसर्च कहते हैं, क्योंकि हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इज इट इफेक्टिव कि नहीं है। ड्रॉ सम कंक्लूजन विद दैट, देन इट इज कम थीसिस। हमें थीसिस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि थीसिस आपके बाद, इसके बाद रिसर्च के बाद थीसिस आते हैं, डेजर्टेशंस आते हैं, ये होते क्या है। सो हम डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन ले रहे हैं। A proposition laid down as a theme to be discussed and proved. A discussion to maintain and prove a thesis, especially written or delivered by a candidate for university degree PhD. जब आप PhD कर रहे होते हो, जब एक यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के पर्सन जो भी है एक यूनिवर्सिटी डिग्री ले रहा होता है PhD की, तब उसको अपने आउटपुट की थीसिस सबमिट करवानी होती है। इसमें क्या होता है कि जब आप अपना सारा प्रपोजिशंस और प्रोपोजिशंस जो होती है, आपने जो भी ड्रॉ कंक्लूजन या आपने सजेशन या मेथड जो कुछ भी एक प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू जब आप प्रोवाइड करते हो यूनिवर्सिटी में देन इट इज़ कॉल्ड ए रिटन डॉक्यूमेंट। जब आप पेश करते हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, थीसिस। ठीक है, तो थीसिस में वही सारी चीज़ें आ जाती है जो अपने मेथड यूज़ करके रिसर्च का सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू आपने एक रिटन फॉर्मेट में जब आप अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हो तो देन इट इज़ कॉल्ड ए थीसिस। ना कम टू द डेजर्टेशन। डेजर्टेशंस क्या होता है। डेजर्टेशंस मीन्स टू डिस्कस। जब हम कुछ डिस्कस करते हैं किसी के साथ उसको हम डेजर्टेशंस कहते हैं। इट इज़ एन एकेडमिक एक्टिविटी लेड डाउन बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ MDS डिग्रीज। एक एकेडमिक एक्टिविटी होती है एक यूनिवर्सिटी जो पेश करती है जब आप कोई पर्सन MDS की डिग्री या PhD की डिग्री ले रहा होता है। इट इज़ एन एक्सरसाइज टू ट्रेन ए PG स्टूडेंट टू प्लान, एग्जीक्यूट, एवेल्युएट, राइट, रिपोर्ट ए साइंटिफिक प्रोजेक्ट। डेजर्टेशन क्या होता है, एक ऐसी एक्सरसाइज होती है। थीसिस क्या होते हैं, थीसिस एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स होते हैं, डेजर्टेशन एक फुल टाइप्स में नोट होते हैं। ठीक है, सो इट इज़ एन एक्सरसाइज होती है जो कि एक PG स्टूडेंट को ट्रेन करता है कि उसने प्लान कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करे, एवेलुएट कैसे करे, रिपोर्ट को राइट कैसे करना है एक साइंटिफिक वे से। इट इज़ एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक। ये एक इन डेप्थ स्टडी होती है जो भी हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके चल रहे होते हैं। विच कॉन्ट्रीब्यूट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इन द फील्ड। ये इस तरीके कॉन्ट्रीब्यूशन देती है कि भाई कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितनी नॉलेज हमने लेनी है। ए फॉर्मल ऑफन लेंथी ट्रीटिस। एक बुक होती है, एक लेंथी प्रोसेस होता है कि लेंथी फॉर्मेट में हमने रिटन फॉर्मेट में जब हम कुछ पेश करते हैं जिसमें हम सब कुछ डिस्कस करते हैं कि सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्ट लाइन क्या है, मेथडोलॉजी कैसी है, डिस्कशन कैसा है, एक्सपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है, डिस्कोर्स कैसा है, रिटन बाय कैंडिडेट फॉर मास्टर डिग्री। जब मास्टर डिग्री थीसिस क्या होते हैं, जब आप अपनी रिपोर्ट को, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में जब आप पेश करते हो अपने ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड सजेशंस को। जब डेजर्टेशंस क्या होता है, जब आप एक लेंथी वे से अपने जो रिपोर्ट को पेश करते हो प्रॉपर एंड जिसमें आपने हर एक चीज़ एक डिटेल वाइज दी होती है, क्या मेथड यूज़ किया है, किस तरीके से यूज़ किया है, क्या रिस्पॉन्डेंट लिए है, किस तरीके से उसको पेश किया है, हर एक चीज़ आप उसमें जब आप डिटेल वाइज इन्फॉर्मेशन देते हो तो वो आपकी डेजर्टेशन कहलाती है।
ठीक है। सो इट इज़ एन परक्वेस्ट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटी फॉर एक्वायरिंग ए मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट। एक प्री रिक्वेस्ट होती है एक एकेडमिक एक्टिविटी की जो कि आपको पेश करनी होती है जब आप मास्टर डिग्री ले रहे होते हो या फिर आप डॉक्टरेट डिग्री ले रहे होते हो। टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज़ हिडन एंड विच हैज़ नॉट बिन डिस्कवर्ड येट। आपने इस ट्रूथ को फाइंड आउट करना होता है डिसर्टेशन में जो आज तक या कभी फाइंड आउट नहीं हुआ है या फिर कुछ हिडन हो, ठीक है। टू कॉन्ट्रीब्यूट टू न्यू नॉलेज, आप कॉन्ट्रीब्यूट करो अपने डिसर्टेशन के थ्रू कि न्यू नॉलेज, कुछ नया आइडियाज़ अपने मार्केट में या वर्ल्ड में लेके आओ जो कि एग्जिस्टिंग वन को भी या फिर पेश करे या फिर कुछ नए तरीके से भी आए, बट यू यूज द साइंटिफिक मेथड टू पेश दैट रिपोर्ट एज ए प्रोफेशनल टू कंडक्ट रिसर्च इन वेरियस आस्पेक्ट्स टू सॉल्व एन एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम। आप एक एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम को लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हो। फॉर थ्रिल एंड एंजॉयमेंट ऑफ डिस्कवरिंग ए न्यू फैक्ट, ये डेजिटेशन क्यों यूज़ की जाती है? जब आपको एक एक्साइटमेंट हो, ठीक है, आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप कुछ डिस्कवर न्यू कर रहे हैं, तो उसको डिसर्टेशन कहते हैं। तो थीसिस में क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स को भी सबमिट करते हो जब आप अपने, बट डेजिटेशन में व्हेन यू आर सबमिटिंग द रिपोर्ट विद द फुल एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक है। नाउ कम टू द क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च। गुड रिसर्च के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले पर्पस क्लियरली डिफाइंड, आपको जो भी पर्पस होगा उसको क्लियरली डिफाइन करो। जैसे कि मैंने एडवर्टीजमेंट की प्रॉब्लम ली है या फिर मैंने रिक्रूटमेंट की ली है, तो आप मैंने प्रॉपरली क्लियर किया है कि हाँ व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द इंटरनेट एडवर्टाइजिंग या फिर इंटरनेट रिक्रूटमेंट ऑफ द पीपल्स एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड्स। इसमें क्या है, आप कंपैरिजन कर रहे हो ट्रेडिशनल का इंटरनेट का और उनके ड्रॉबैक्स या बेनिफिट्स आप निकाल के दिखाते हो। तो फर्स्ट इज द पर्पस शुड बी क्लियरली डिफाइंड, देन रिसर्च प्रोसेस डिटेल। आप जो भी काम करोगे एक सिस्टमेटिक वे से आप काम करोगे, एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके चलोगे। रिसर्च डिज़ाइन थ्रूली प्लान, जो भी आप काम कर रहे हो वो पहले से ही प्री प्लान्ड होना चाहिए। हाई एथिकल स्टैंडर्ड अप्लाई, हाईली स्टैंडर्ड आप फॉलो करके चलो, ना कि नैरो स्टैंडर्ड नहीं चलना है। वाइड थिंक बिग, थिंक बिफोर अदर वन थिंक, दूसरे से पहले सोचो, ठीक है, वो चीज़ इसमें एप्लीकेबल होगी। लिमिटेशन फ्रैंकली रिवील्ड, कुछ भी आपके स्टडी की लिमिटेशंस है, ड्रॉबैक्स, उसको आप फ्रैंकली रिवील्ड करो ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि आपने बहुत कोशिश की है ट्रूथ आउट फाइंड करने की। एडुकेट एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकर्स नीड, एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जो भी डिसीजन ले रहा है आपके रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। आप एक जो भी कंक्लूड कर रहे हो एक आपको अच्छी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। फाइंडिंग प्रेजेंटेड क्लियरली, आपकी जो भी फाइंडिंग्स हैं, आपके जो भी कंक्लूजन्स हैं, आपके जो भी सजेशंस होंगे उनको आपने क्लियरली प्रेजेंट करना है अपने डिसर्टेशन रिपोर्ट में। कंक्लूजन जस्टिफाइड, आपका जो भी कंक्लूजन होगा वो भी आपको देना ज़रूरी होता है। रिसर्चर्स एक्सपीरियंस रिफ्लेक्टेड, एक रिसर्चर का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। सो एक गुड रिसर्च के लिए क्या है, सबसे पहला है आपकी प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे रिसर्च प्लानिंग को प्रॉपरली फॉलो करके चलना है। थर्ड नंबर पे प्री प्लान्ड एक्टिविटीज़ आपने फॉलो करनी है। फोर्थ क्या है, हाईली स्टैंडर्ड फॉलो करके चलने हैं। आपकी कुछ भी लिमिटेशंस हैं उनको आपने फ्रैंकली रिवील्ड करना है। फिर उसके बाद एडुकेट एनालिसिस ऑफ डिसीजन मेकर्स, डिसीजन मेकर का एडुकेट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ताकि वो कंक्लूजन अच्छे से निकाल सके। फाइंडिंग प्रेजेंटेड क्लियरली, आपकी जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको क्लियरली रिप्रेजेंट करो। कंक्लूजन आपका अच्छे से जस्टिफाइड होना चाहिए और रिसर्चर का एक्सपीरियंस भी है वो भी आपको मैटर करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च। In my second video, this video, I have also given the meaning of research. Just go through. You can, if you understand the meaning, आगे हम further continue कर सकते हैं आराम से. So thank you so much.